وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم کا پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت اور پولٹری کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس، مصنوعی قلت کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ شوگر انکوائری کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، حکومت کے سامنے صرف عوام کا مفاد مقدم ہے، چینی کی قیمت میں ہر صورت کمی لائیں گے، جو بھی اس معاملے میں ملوث ہوا اس کے خلاف ایکشن ضرور ہوگا، وزیر اعظم عمران خان۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں کرونا کی صورتحال پر بریفنگ، وفاق کی جانب سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1000 مزید بیڈز کی فراہمی، ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں، کابینہ نے سیکٹر F12 اور سیکٹر G12 کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی منظوری دے دی۔ بھارت نے حملے کی غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، بھارت معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، دنیا امیت شاہ کے بیان کا نوٹس لے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا، قابض فوج کے ہاتھوں 9 کشمیریوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے، مودی سرکار مظلوموں پر ستم ڈھا کر بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا، وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز قطری۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کا شکیہ کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت، اقوام متحدہ تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرے، کل جماعتی حریت کانفرنس، پلوامہ میں قابض فوج کی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں، متعدد نوجوان گرفتار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 56 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 34,855 کی سطح پر پہنچ کر 34,803 پر بند۔ ٹڈی دل ملک کی زرعی معیشت کے لیے بڑا خطرہ، حکومت کے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات جاری، متاثرہ علاقوں میں ہوائی جہازوں، ہیلی کاپٹرز اور زمینی ٹیموں کی مدد سے چھڑکاؤ، بلوچستان کے علاقے پشین میں ٹڈی دل کے خلاف FT اور آرمی ایویشن کا فضائی آپریشن، گزشتہ 3 دن میں سینکڑوں ایکڑ زمین کو کلیئر کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا کیسز کا گراف مزید بلند، متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,317 ہو گئی، وبا سے مزید 105 افراد انتقال کر گئے، جام بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,172 ہو گئی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,646 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، 35,018 صحتیاب۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا اسمبلی ہال کا دورہ، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات کا جائزہ، قومی اسمبلی ہال میں اراکین کی نشستوں میں 2 میٹر تک کا سماجی فاصلہ رکھا گیا ہے، حکام کی بریفنگ، اسپیکر کی اسمبلی ہال، تمام چیمبرز اور دفاتر کی فیومیگیشن کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں ماسک پہننے کی پابندی مزید سخت، سرکاری دفاتر میں ماسک پہننے کی ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کا حکم، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے بھی 6 موبائل لیبارٹریز اور بائک اسپاٹ کا افتتاح کر دیا۔
دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 72,50,000 کے قریب پہنچ گئی. 4,10,000 سے زائد جان کی بازی ہار گئے. 35,57,000 سے زیادہ صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,13,000 سے تجاوز کر گئی. بھارت میں بھی 7,000 سے زیادہ اموات. نیوزی لینڈ کی حکومت کا ملک کو کرونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان. آخری مریض بھی ہسپتال سے ڈسچارج. عوام کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملی. وزیر اعظم جیسنڈرا آرڈن. کراچی کے علاقے لیاری میں رہائشی عمارت کے انہدام میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی. ڈی جی رینجرز سندھ کا جائے حادثہ کا دورہ. امدادی کاموں کا جائزہ لیا. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ. لیجنڈ ٹیسٹ کرکٹر یونس خان قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر. مشتاق احمد اسپن بالنگ کوچ اور مینٹور کی حیثیت سے دورہ انگلینڈ پر ٹیم کے ساتھ ہوں گے. 3 ٹیسٹ میچ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم. میں ہوں نازیہ کمل. اور کھیلوں خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس. لیکن فی الوقت کچھ ہم قومی خبروں کے لیے آپ کے لیے چلتے ہیں مین لائن کی طرف. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے معاشرے میں بے چینی پھیلانے کے بجائے حفاظتی اقدامات پر مؤثر عمل درآمد ضروری ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال میں لیڈرشپ کا کردار انتہائی اہم ہے. کابینہ اجلاس کی تفصیلات بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کے ایک طبقے میں کورونا کے بارے میں اب بھی غلط فہمیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن ممکن نہیں کیونکہ جہاں ہمیں کورونا سے خطرہ ہے وہاں غربت بھی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوام کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور SOP پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے کیسز سے متاثرہ مریضوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے چاروں صوبوں میں آکسیجن کی سہولت سے آراستہ 1000 مزید بیڈز رواں ماہ قائم کیے جائیں گے اور اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں مزید 200 بیڈز کا اضافہ کر دیا جائے گا. کابینہ کو شوگر انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت مکمل شفافیت پر یقین رکھتی ہے. شوگر انکوائری کے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا.
वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जंग है। जो भी इस मामले में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। शुगर इंक्वायरी से मुतल्लिक ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह मसला नैब के हवाले किया गया है, जो कानून के मुताबिक 1985 से दी जाने वाली सब्सिडी का जायजा लेगी। काबीना को बताया गया कि कमीशन ने सिर्फ 9 मिलों के मामलात का जायजा लिया था, लेकिन अब वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में FBR को हदायत की गई है कि वो बकिया 88 मिलों के मामलात का भी जायजा ले और मामलात को मुख्तलिफ अदारों के हवाले करने से मुतल्लिक भी तफसीलात बताई गई। इजलास को बताया गया कि चीनी की पैदावारी कीमत का तयन करने और चीनी की कीमतों में कमी लाने के हवाले से वज़ीर सनअत व पैदावार की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। काबीना इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत की रिपोर्ट्स का सख्त नोटिस लिया और हदायत की कि इस किल्लत का सबब बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा आइंदा 48 से 72 घंटों में पेट्रोलियम की रेगुलर सप्लाई को यकीनी बनाएं। इजलास में फैसला किया गया कि ऑयल कंपनियां जो अपने लाइसेंस की शर्त के मुताबिक मुकर्ररा स्टॉक रखने में नाकाम रहीं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस कैंसिल करना और भारी जुर्माना शामिल हो। वज़ीर आज़म ने पोल्ट्री की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस लिया। वज़ीर आज़म ने मुशीर खजाना को हदायत की कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कंट्रोल कमेटी का इजलास तलब किया जाए और इस मामले की तफसीली रिपोर्ट काबीना को पेश की जाए। इजलास को मुतरूका इमलाक की जायदादों को मस्बत तरीके से बुरवेकार लाने और बोर्ड के मामलात को मुनज़्ज़म करने के हवाले से टास्क फोर्स की सिफारिशात से मुतल्लिक भी ब्रीफ किया गया। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 जून 2020 के फैसलों की तौसीक की। पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से काबीना ने नोट किया कि मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात का है। मुल्की मुफाद में इस्लाहाती एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और सरकारी इदारों में मियारी अफरादी कुव्वत को यकीनी बनाने, खुसूसन इदारों के सरबराहान के ओहदों के लिए काबिल अफराद को हुकूमत में लाने के हवाले से तरीकाकार के बारे में डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी सिफारिशात पेश की, जिनकी काबीना ने मंजूरी दी। मुआवने सूसी शहजाद अरबाब ने सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, खुसूसन इदारों और अहदाफ मुकर्रर करने और इनके हसूल के लिए परफॉर्मेंस कंट्रैक्ट मुतारफ कराने के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने सेक्टर F12 और सेक्टर G12 को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के लिए मुख्तस करने की भी मंजूरी दी। इन सेक्टर में तामीर होने वाले घरों में 50% कोटा वफाकी मुलाजमीन के लिए, 25% ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, जबकि बकिया 25% अवाम के लिए मुख्तस किया जाएगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारत हिमाकत न करे, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाकिस्तान का भारत के फिजाई हमला करने पर रद्द अमल, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा बयान। वजीर खारजा ने कहा है कि अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। उन्हें वाज़ेह करना चाहता हूं कि भारत ने हमले की गलती की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया अमित शाह के बयान का नोटिस ले। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। भारत मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमित शाह को पूछना चाहता हूं कि उनका लद्दाख के बारे में क्या ख्याल है। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? इस मामले पर भारतीय मीडिया क्यों खामोश है? वजीर खारजा ने कहा कि भारत में अक़लियतें हुकूमत से नाला है, लेकिन वो अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया कोरोना की वबा से बरसरे पैकार है तो दूसरी जानिब भारत मजलूमों पर सितम ढाकर बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। भारत जबरो इस्तिबदाद से कश्मीरियों की खुद इरादियत के हक की अजीम जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकता। कश्मीरी अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो चुका है। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों 9 कश्मीरी नौजवानों की शहादत जुल्म की इंतहा है। अपने जमहूरी हक के लिए सरापा एहतजाज निहत्ते कश्मीरियों पर पैलेट गन्स, आंसू गैस और दीगर मजालिम इंसानियत के खिलाफ भारतीय जराइम का मुंह बोलता सबूत हैं, जिसका अक़वाम आलम को हर सूरत नोटिस लेना होगा। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुपियां में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 9 कश्मीरी नौजवानों को शानदार खिराजे अकीदत पेश करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुतालिबा किया है कि वो तनाज़ा कश्मीर को सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हल करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जिला शुपियां में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान 9 नौजवान शहीद कर दिए, जबकि 2 दर्जन के करीब मकानात को भी तबाह कर दिया गया।
کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری نوجوان بھارت سے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی طرف سے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ امت اسلامی کے چیئرمین قاضی یاسر اور اتحاد اسلامی کے رہنماؤں نے شوپیاں میں متاثرہ خاندانوں کے گھر جا کر بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نوجوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی جموں کشمیر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اب بھی مزاحمت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کاروں اور کشمیری عوام کی رائے ہے کہ بھارت سید علی گیلانی کو کشمیری عوام سے دور کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی رہنما کی طرف سے اکثر لگائے جانے والے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے جیسے نعروں نے سید علی گیلانی اور آزادی کی امنگ کو کشمیری عوام کے دل و دماغ میں زندہ رکھا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پلوامہ میں 1 درجن سے زیادہ نوجوان بھی گرفتار کر لیے ہیں۔ جموں و کشمیر سکھ انٹلیکچوئل سرکل کے چیئرمین نریندر سنگھ خالصہ نے جموں میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ سکھ برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے باوقار حل کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور بربریت کے خلاف دفتر خارجہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی کی قیادت میں انتہا پسند بھارتی حکومت نے علاقائی امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ دنیا 1 سے 2 مہینے تک گھروں میں قید ہو کے نہیں رہ سکی۔ پچھلے 10-11 ماہ سے کشمیر کے لوگ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی جانیں دے رہے ہیں اور گھروں کے اندر قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کشمیری کو ہر طرح سے زیر کیا جائے اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں بھارت کے اس ظلم کے خلاف انسانی حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کشمیریوں کو شہید کر کے کشمیر میں نسل کشی پر عمل پیرا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کی آڑ میں کشمیریوں پر تشدد کر رہا ہے۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھی شدید مذمت کی۔ لاک ڈاؤن اوپن کریں، اس کو سلوشن کی طرف لے کے جائیں، جو کشمیری چاہتے ہیں وہ چیز کر دینی چاہیے۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اپنا حق دے جو ان کو اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیری کورونا وائرس سے نہیں بلکہ بھارتی فوج سے خوفزدہ ہیں۔ مظاہرین نے عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم کے خلاف مذمتی قرارداد بھی پیش کی گئی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں کاروبار کے حوالے سے۔ آج کاروباری ہفتے کے دوسرے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 34,855 کی سطح پر پہنچ کر 34,803 پر بند ہوا۔ انڈیکس میں 54 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ بازار حصص میں 338 کمپنیز کے شیئرز کا کاروبار ہوا جن میں 169 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 144 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ 25 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بازار حصص میں 96,754 شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت 9 ارب 13 کروڑ 68 لاکھ روپے سے زائد تھی۔ بات کریں گے ٹڈی دل کے بڑھتے حملوں کی، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر حکومت پنجاب کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات، ہنگامی حالت کا نفاذ، پنجاب لوکس کنٹرول پلان کی تیاری اور 1 ارب روپے کی کثیر رقم کا اجرا۔ PDA میں تمام ڈویژن اور اضلاع میں 24/7 کنٹرول رومز کا قیام، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے مانیٹرنگ کا جدید ترین نظام۔ ٹڈی دل کی مؤثر نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اپنا سرکاری ہیلی کاپٹر وقت۔
गुज़िश्ता जुलाई से लेकर अब तक टिड्डी दल के हमले से पंजाब के मुतासिरा 26 अजला में 1,60,00,000 एकड़ से जायद रकबे पर टिड्डी दल की मौसर निगरानी और 7,60,000 एकड़ से जायद रकबे पर स्प्रे। अपने इलाके में टिड्डी दल की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने के लिए BDMA के मखसूस नंबर 04299204408 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। काश्तकार हजरात स्प्रे करते वक्त कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। बात करेंगे टिड्डी दल की। टिड्डी दल मुल्क के ज़रूरी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हुकूमत पाकिस्तान टिड्डी दल को खत्म करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर की सरबराही में तमाम वसाइल रोएकार लाए जा रहे हैं, जिनमें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जमीनी टीमों की मदद से छिड़काव शामिल है। जिला खुशाब, बखर, लिया, झंग, राजनपुर, डीजी खान और ओकाड़ा में टिड्डी दल के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के बाद अब चोलिस्तान की तरफ टीमें रवाना की जा रही हैं। पाक फौज की मदद से वतन अजीज के हुनरमंद इंजीनियर ने महदूद वसाइल को बरूएकार लाते हुए मुल्तान में माकूल लागत से स्प्रे मशीन तैयार की है, जो इससे पहले दरामद की जाती थी। खबर देंगे आपको पशीन से, जहां मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से 3 रोज से फजाई स्प्रे जारी है, जिससे सैकड़ों एकड़ अराजी क्लियर कर दी गई है। इलाके के जमींदारों और किसानों ने FC बलूचिस्तान के इन इक़दामात को सराहते हुए कहा है कि इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन से तकरीबन 700 एकड़ ज़रई जमीन से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है। FC बलूचिस्तान सूबे में अमन व अमान के क़याम के साथ फलाह आम के शोबों में भी नुमायां किरदार अदा कर रही है। और अब कुछ बात कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4,646 केसेस का इजाफा हुआ और 105 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,317 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2,172 है, जबकि 35,018 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर में 102 टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। इजाफी जरूरियात के लिए जून जुलाई में शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर गौर किया जा रहा है। दूर दराज इलाकों में हेल्थ डैशबोर्ड के जरिए घर पर भी इलाज के लिए मुआवनत फराहम की जा रही है। हेल्थ डैशबोर्ड के तहत 188 डॉक्टर्स ने 1,374 अफराद को तिब्बी मशवरे फराहम किए हैं। इस इजलास में कोरोना के खिलाफ बरसरे पैकार तिब्बी अमले के लिए खुसूसी पैकेज पर भी गौर किया गया। इजलास के फोरम को बताया गया कि मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटें, सनदों और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली हॉल का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर स्पीकर को बताया गया कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कौमी असम्बली हॉल में अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों में 2 मीटर का समाजी फासला रखा गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के 5 जून से शुरू होने वाले इजलास से पहले कौमी असम्बली हॉल, तमाम चैम्बर्स और दफातर में जरासीम कुछ स्प्रे की हिदायत की। और इस वक्त एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। भारत की जानिब से एक मरतबा पर पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से एक मरतबा पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इस्ताल फायरिंग की गई है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है। तफसीलात आसिम रिजवान से जानेंगे। आसिम, क्या सूरत हाल है? भारत की जानिब से एक मरतबा फिर से दरअंदाजी की गई है। जी बिल्कुल, भारतीय फौज ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के जंदरोड सेक्टर में शहरी आबादी को दानिस्ता जो है वो निशाना बनाया और बिला इस्ताल फायरिंग की। भारतीय फौज ने जो इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसने वाली शहरी आबादी पर, उसके नतीजे में डेरा शेर खान और सुंधारा समेत
3 गांव में बसने वाले 4 सिविलियन जो हैं, जिनमें 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं, वो शदीद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए और उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए जो करीबी मेडिकल फैसिलिटी है वहां पर इवैक्यूएट कर दिया गया है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ये कहना है कि पाक फौज के दस्तों ने भारतीय वो जो पोस्टें शहरी आबादी को निशाना बना रही थी उन्हें जवाबी कार्रवाई में इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया और जो 4 शहरी जख्मी हुए हैं पाकिस्तान की तरफ सिविलियन, उनमें नसरीन बीबी खातून शामिल है जिनकी उम्र 26 साल है और उनका ताल्लुक जो है वो संधारा गांव से था। इसी तरह दूसरी जो खातून भारतीय बिलाइस्ताल फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हुई हैं, उनका नाम राबिया है और उनकी उम्र जो है वो 24 साल है और वो डेरा शेर खान की रहने वाली थी। इसी तरह जख्मियों में 2 बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं जिनकी उम्र जो है वो 7-7 साल है। और इस साल हमने ये देखा कि भारतीय फौज जो है वो दानिस्ता तौर पर जो है शहरी आबादी को डेलिबरेटली टारगेट करती है और दानिस्ता तौर पर उनकी कोशिश ये होती है कि शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया जाए, जबकि उसके जवाब में पाक फौज जो भी मौसर और बर वक्त और जवाबी कार्रवाई करती है उसमें हमेशा कोशिश ये की जाती है कि सिर्फ उन पोस्टों को टारगेट किया जाए, भारतीय पोस्टों को जो कि पाकिस्तान के इलाके में शहरी आबादी को टारगेट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक मरतबा फिर भारतीय फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है जिस पर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान मुहाजिरीन को पनाह देने के हवाले से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि आलमी वबा कोरोना के तनाजुर में मुहाजिरीन की जिम्मेदारी मुश्तरका तौर पर होनी चाहिए। पाकिस्तान अब तक अपने वसाइल से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी करता आया है। इस्लामाबाद में आलमी वबा कोरोना के दौरान मुहाजिरीन की हालत और आलमी ताउन की जरूरत के उन्वान पर वो बैनुल अक़वामी वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन और दूसरे बेघर होने वाले अफराद की इमदाद के लिए ताउन वक्त की अहम जरूरत है। No state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. It is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and to support large refugee hosting countries during these difficult times. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से जापान के सफीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। जापानी सफीर ने पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैक वक्त कोरोना और टिड्डी दल के दोहरे मसाइल का शिकार है। जापान पाकिस्तान को कोरोना टेस्टिंग की इस्तादाद में इजाफे के लिए मुमकिना मुआवनत करना चाहता है। जापानी सफीर ने कहा कि जापान पाकिस्तान में टिड्डी दल के तदारुक के लिए अद्वियात और मशीनरी मुहैया करेगा। चेयरमैन NDMA ने कहा कि टिड्डी दल और कोरोना के साथ साथ मानसून में सैलाब भी मुतवक्के हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ ताउन पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से डॉक्टर ताहिर शमसी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज और मुल्क में प्लाज्मा थेरेपी की मौजूदा सहूलियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलियात को वसी करने का फैसला किया गया। चेयरमैन NDMA ने कहा कि इस सिलसिले में उनका इदारा जरूरी सहूलियात मुहैया करेगा। उन्होंने कहा कि रजाकाराना तौर पर प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल ने कहा कि कोरोना से सेहतमंद होने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्लाज्मा अतिया करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से लोगों को कोरोना से महफूज रखने के लिए सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद, खाने पीने की मयारी अशिया की फराहमी के हवाले से भी इक़दाम किए गए हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के बयान और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं नवीद हयात। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि मास्क पहनने की पाबंदी से कोई भी शख्स मुस्तस्ना नहीं है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए 6 मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मियारी खुराक फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में पाकिस्तान पर हमले की भारतीय धमकी को मोदी का जुनून करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पाकिस्तान
पाकिस्तान पर हमले की धमकी से पहले 27 फरवरी का अंजाम याद रखे। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह अवाम का SOPs पर अमल न करना है। बेड्स और वेंटिलेटर्स हर जगह अवेलेबल है। एक्टेम्बरा इंजेक्शन के हमें फवायद नजर आए हैं, हमने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि एक्टेम्बरा इंजेक्शन पर पहले मरहले में 1000 मरीजों पर ट्रायल होगा, जिसकी पंजाब हुकूमत ने इजाजत दे दी है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सूबा सिंध में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए वजीर आला सिंध ने अवाम से अपील की है। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध ने लियारी के मुस्तहिक तबके के लिए राशन के ट्रक मुंतखब अरकान के हवाले किए। मजीद तफसील कराची से नवाब अली शाह से। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में अब तक कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 19,896 है। उन्होंने कहा कि आज 759 मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं, जबकि 24 घंटों में 6,995 कोरोना वायरस की टेस्ट किए गए हैं। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में लियारी से ताल्लुक रखने वाले मुंतखब अराकीन को राशन के 4 ट्रक हवाले किए। मुंतखब अराकीन ये राशन के ट्रक मुस्तहिक अफराद में तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स सूबे के हर एक इलाके में मुतासरा अफराद तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की सदारत में कराची में आला सतह इजलास हुआ। इजलास में सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी समेत मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे की तरक्की के लिए वफाक का भरपूर ताउन जारी रहेगा। मुआशी शहर कराची की तरक्की के लिए वजीर आजम ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं। इजलास को सूबे में वफाक की जानिब से जारी ग्रीन लाइन मंसूबा, बल्दिया उज़्मा कराची के लिए फायर टेंडर्स फराहमी समेत कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। PTV न्यूज़ के लिए कराची से नवाब अली शाह। खैबर पख्तूनख्वा के टीचिंग अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के रश को कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों की इस्तादाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इस ज़िम्न में एक काबिल अमल प्लान तश्कील देने की भी हिदायत की है। तफसीलात बता रहे हैं साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोविड पॉलिसी पर बेहतर अंदाज में अमल दरामद के लिए महकमा सेहत और अस्पतालों के दरमियान रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुशीर इत्तेहाद अजमल वजीर ने बताया कि वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले टास्क फोर्स इजलास में तमाम टीचिंग अस्पतालों को अपनी इस्तेदाकार बढ़ाने के लिए टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। पेशावर के जो बड़े हॉस्पिटल्स है, जिसमें लेडी रीडिंग स्टॉल है, जिसमें HMC, जिसमें KTH और इस तरह दिगर जो हमारे अयूब टीचिंग हॉस्पिटल्स है और हॉस्पिटल्स है, इसकी जो इस वक्त कैपेसिटी है वो मौजूद है और उसमें जो कोरोना वबा की मरीजों के लिए जो मुख्तस किए गए बेड थे और जो वेंटिलेटर्स थे उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुशीर इत्तेहाद ने कहा कि वज़ीर आला के वाज़ेह अहकामात के मुताबिक जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं उन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद के हवाले से कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में पेट्रोल की किल्लत के हवाले से सूबाई मुशीर इत्तेहाद ने बताया कि मसनूही किल्लत और ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूबे के टिड्डी दल ज़दा इलाकों में ऑपरेशन जारी है, जबकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की तरसील का अमल भी शुरू हो चुका है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुहलिक वबा से मुतासर अफराद और अमवात की तादाद पाकिस्तान भर में सबसे कम है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के वबा की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं आसिम रिजवान की। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान भर में 775 अस्पतालों में कोरोना सहूलियात दस्तयाब हैं। मुल्क भर में कोरोना के सबसे कम केसेस आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में अब तक कोरोना के 412 केसेस रिपोर्ट हुए और अमवात की तादाद 9 है, जो कि कम तरीन है। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 952 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की तादाद 14 है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 1400 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ऑक्सीजन सहूलत के साथ 5137 बिस्तर भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं।
अब तक मजमूई तौर पर 322 मरीज वेंटिलेटर्स पर शिफ्ट हुए हैं। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों की सलाहियतों में इजाफे और जरूरियात को पूरा करने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 10-10 नए इजाफी वेंटिलेटर्स भी फराहम किए हैं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में 11 और मुजफ्फराबाद में 18 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के लिए मुख्तस हैं। लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, खुदारा एहतियात कीजिए। साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यह मुतालबा करता हूँ, जो तरीक़ाकार वो अपनाते हैं किसी मरीज को शिफ्ट करने के लिए, खुदारा इस तरीक़ाकार को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस तरीक़ाकार की वजह से लोग मर्ज के बजाय मरीज से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट की लेड डाउन पॉलिसीज हैं और SOPs हैं, उसके साथ कम अज कम वो तो जरूर करें। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आजाद कश्मीर में अब तक 9000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 200 के करीब मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में बरसरे पैकार सफ़े अव्वल में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया गया है। मैं कोविड-19 में एक फ्रंट लाइनर हूँ। 14 डेज क्वारंटाइन होने के बाद मैं रिकवर हुआ हूँ। आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को घर में रह के बचाएं। कोरोना को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लें। अवाम की हिफाजत के लिए ज़वाबित-ए-कार पर अमल दरामद की मुहिम भी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी है, जिसके तहत मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जा रहा है। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वायरस की अलामात न रखने वाले अफराद वबा के फैलाव का बायस नहीं हैं। WHO हुकाम के बयान ने इब्तदाई तहकीक पर खदशात पैदा कर दिए हैं, जिसमें कहा गया था कि ये वबा तेजी के साथ इसलिए फैल रही है कि इसको फैलाने वाले ज्यादातर अफराद अलामात नहीं रखते। आलमी इदारा सेहत की सरबराह बराए अमराज डॉक्टर मारिया वेन कर्कहुवी ने जिनेवा में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि ये मर्ज शाज़ व नादिर ही अलामात न रखने वाले फर्द से दूसरे तक मुंतकिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अलामात रखने वाले अफराद की टेस्टिंग, अलहदगी और ट्रैकिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 72,50,000 के करीब पहुंच चुकी है। 4,10,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 36,30,000 से जायद अफराद सेहतियाब हो गए हैं। अमरीका बदस्तूर सबसे ज्यादा केसेस के साथ पहले नंबर पर है, जहां 20,26,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासर, जबकि 1,13,000 से जायद हलाक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील में 7,10,000 से ज्यादा अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है और 37,000 से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। उधर न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क को कोरोना फ्री करार देकर पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस के आखिरी मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों की वजह से वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। अब मुल्क में कोरोना वायरस का कोई भी फाल केस मौजूद नहीं है। आलमी बैंक ने कोरोना वायरस से आलमी मईशत 5.2% सुकड़ जाने का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ा मुआशी बहरान है, जिससे गुर्बत में गैर मामूली इजाफा होगा। आलमी बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में कहा है कि अमीर मुल्कों की मुआशी सरगर्मियों में कोरोना वायरस के बायस 7% तक कमी आएगी। फीकस आमदनी में भी नुमाया कमी का खदशा है, जिससे लाखों अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। लॉस एंजलिस में पुलिस के हाथों से अफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड और दूसरे शहरियों की हलाकत के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने खाली ताबूतों के ऊपर फूल रखकर पुलिस के हाथों हलाक होने वाले तमाम शहरियों को इंसाफ देने का मुतालिबा किया। मैक्सिको में भी पुलिस की हिरासत में एक शख्स की हलाकत के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव भी किया। हुकाम के मुताबिक कंस्ट्रक्शन वर्कर को हलाक करने के इल्जाम में अब तक 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی ایک اور خصوصی پرواز 253 مسافروں کو لے کر آج بغداد سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے ہوائی اڈے پر مسافروں کو الوداع کہا۔ مسافروں نے وطن واپسی کے لیے سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا ہے۔ اجلاس میں 3 انکوائریوں کی منظوری دی گئی، جن میں عامر محمود قیانی، سول ایویشن، CDA کے افسران اور دیگر انکوائریز شامل ہیں۔ اجلاس میں ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف شکایت کی جانچ پڑتال کی بھی منظوری دی گئی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے کہا کہ احتساب سب کے لیے کی پالیسی کے تحت گزشتہ 2 سال میں 178 ارب روپے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بدعنوان عناصر سے برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین فیصل جاوید کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں PTV کے اصلاحاتی پروگرام پر بات کرتے ہوئے چیئرمین PTV راجہ ارشد خان نے کہا کہ ادارے کا کام سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ قومی یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ ہم عہد حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف اس کے اسلوب میں تبدیلی لا رہے ہیں بلکہ 20 کے قریب نئے پروگرام بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ MD PTV عامر منظور نے کمیٹی کو بتایا کہ نئے پروگرامز متعارف کروانے کے لیے سلاٹ میں سے پرانے پروگرام کو بدلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینکر پرسن کانٹریکٹ جاب ہے، یہ مستقل ملازمت نہیں۔ اسکرین اور وقت کی ضروریات کے مطابق نئے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اجلاس میں نجی ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے صحافیوں کو تنخواہیں نہ ملنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا کہ بعض چینلز کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود کئی ماہ سے صحافیوں کو تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت صحافیوں کو تنخواہ دلانے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کرے اور ٹیلی ویژن سے وابستہ صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ سینٹ کی فنکشنل کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اراکین کمیٹی نے کہا کہ کورونا وبا سے جہاں زندگی کے دیگر شعبے دباؤ میں آئے ہیں وہیں تعلیم کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا وسائل سے لیس ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ معیار تعلیم بہتر کرنے اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھرپور فنڈنگ یقینی بنائی جائے۔ دوسری جانب سینٹ کی قائمہ کمیٹی ریلویز کا اجلاس محمد اسد علی خان جنیجو کے زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ 1 جون سے تمام مسافر ٹرینیں بحال کر دی گئی ہیں تاکہ مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات کیے گئے جن میں سے ٹرین میں بیٹھنے کو 100% استعداد کو کم کر کے 60% تک محدود کیا گیا۔ سیٹوں کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ رکھا گیا اور کل 25 ریلوے اسٹیشن کھولے گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے نیشنل مشائخ کونسل پاکستان کے صدر خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں کورونا وبا اپنی انتہائی سطح کو چھو رہی ہے۔ ان حالات میں ہمیں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل پیرا ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی درخواست پر علماء اور مشائخ کی جانب سے تعاون اور عوامی اجتماعات سے اجتناب قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مالی سال میں غیر ترقیاتی فنڈز کو کم سے کم سطح پر رکھتے ہوئے ترقیاتی مد میں زیادہ فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ جاری منصوبوں کے لیے فنڈز ضلعی مانیٹرنگ کمیٹی، ڈویژنل کمشنر اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کی سفارشات کے مطابق مختص کیے جائیں گے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ رضاکار اداروں اور مخیر حضرات نے بھی کورونا وائرس سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے طبقے کی معاونت میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن بلوچستان کے صدر انجینئر جمیل کرد اور کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا الرحمان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ادارے کے رضاکاروں کے جذبے اور کارکردگی کو سراہا ہے۔ پاک بحریہ کے لیے مقامی طور پر تعمیر کیے جانے والے ملزم کلاس جہاز کی اسٹیل کٹنگ کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مینیجنگ ڈائریکٹر شپ یارڈ ریئر ایڈمرل اطہر سلیم تھے۔ ترکی کے تعاون سے تعمیر کیا جانے والا یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوگا اور جہاز کی تعمیر فروری 2024 تک مکمل کر لی جائے گی۔ 4 ملزم کلاس جہازوں میں سے 2 کراچی شپ یارڈ میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہازوں کی تعمیر کا یہ منصوبہ پاکستان اور ترکی کے مابین مضبوط دفاعی تعلقات کا عکاس ہے۔ اور ابھی افسوسناک خبر کراچی سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں اتوار کے روز کثیر المنظرہ عمارت گرنے کے حادثے میں ایدھی ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان احمد۔
लियारी लियाकत कॉलोनी खड्डा मार्केट में मुनज़्ज़म होने वाली इमारत में तीसरे रोज भी रेस्क्यू का काम जारी रहा। एडी और छिपा जराये के मुताबिक अब तक मलबे से 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे से निकलने वाली लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने जाए हादसा का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची शहर में बिल्डिंग गिरने का तीसरा वाकया है। सिंध हुकूमत बताए कि 12 सालों में इन गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन है। आपने पूरा जंगल कायम कर दिया जाली बिल्डिंगों का, और ये लियारी में किसकी चलती थी? हमें तो चला भी अरसा हुआ, ये बिल्डिंगें हमारे अरसे में नहीं बनी हुई हैं, और एसबीसी आज भी आपकी है। मैं पूछना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार कौन? सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गिरने वाली इमारत की तफ्तीश की जा रही है और इमारत के रिहायशियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद कुछ खानदान यहाँ रिहाइश पजीर थे। उन्होंने कहा कि शहर भर में 422 इमारतों को मखदूश करार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इन लोगों को मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। एसबीसीए के मुताबिक बिल्डिंग को पहले ही मखदूश करार दे दिया गया था, जबकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक को इस मखदूश इमारत के कनेक्शन खत्म करने की हिदायत भी की गई थी। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पंजाब असेंबली में करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का तरमीमी बिल 2020 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल मुस्लिम लीग काफ के रुकन खतीजा उमर ने पेश किया, जिसके मुताबिक इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, तारीख, उर्दू लिटरेचर और दूसरे मज़ामीन का मजहबी मवाद तदरीसी किताबों में शाया करने से कबल मुत्तहदा उलमा बोर्ड पंजाब से मंजूरी जरूरी होगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। और पंजाब असेंबली में तारीखी कानून साजी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की कोशिशों से पंजाब असेंबली में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी को रोकने के लिए बिल पंजाब असेंबली में मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आए रोज दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत हर किस्म की दीनी कुतब और दीनी मवाद जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर पाबंदी होगी कि वो पहले मुत्तहिदा उलमा बोर्ड से इसकी तस्दीक करवाए। हम अपनी जो कौम तैयार कर रहे हैं, आइंदा जो नस्लें तैयार कर रहे हैं, वो इस शर से हमने उनको महफूज रखना है जो ये बुलाया जा रहा है। ये हमारी सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, और ये मैं आप सबको बार बार पेश करता हूँ कि आपने पिछले दिनों जो कानून साजी की है और जो आपने करारदादें दी है, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए न सिर्फ कानून है बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है। उसके बगैर हम मुसलमान भी मुकम्मल हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की सदारत में स्पीकर चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब असेंबली के जारी इजलास के एजेंडे के हवाले से बातचीत की गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और अपोजिशन के अरकान ने भी शिरकत की। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ अजला में कायम गर्ल्स कॉलेजेस में 16 बसें फराहम कर दी गई हैं। इस हवाले से तकरीब में सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में तालीम के फरोग के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। कोहलू, बारखान, हरनाई, नसीराबाद और दूसरे इलाकों के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस को बसें फराहम की गई हैं। टेलीविजन और थिएटर के नामवर अदाकार जमील फखर की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। 1946 को जन्म लेने वाले मारूफ अदाकार जमील फखरी ने अपने फनी सफर का आगाज थिएटर से किया। शोहरा आफाक टीवी ड्रामा अंधेरा उजाला में इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार उनकी पहचान बन गया। जमील फखरी ने 50 से ज्यादा फिल्मों और अनगिनत ड्रामों में भी काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में वारिस, लाजवाल, जंजालपुरा, बंधन, एक मोहब्बत सो अफसाने और दलदल शामिल हैं। जमील फखरी 9 जून 2011 को 65 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले आपको बताएं, लेजेंड टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान को दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच और मेंटोर की हैसियत से दौरा इंग्लैंड पर टीम के साथ होंगे। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा कि खुशी है कि यूनुस खान जैसे शानदार क्रिकेटर ने रजामंदी जाहिर की। इंग्लैंड की कंडीशंस में उनका साथ होना क्रिकेटर्स के लिए मुस्बत साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुश्ताक अहमद इंग्लिश कंडीशन से वाकिफ हैं। दौरा इंग्लैंड में वो एक असासा साबित होंगे। 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। कौमी टीम के नौमंतखब बैटिंग कोच और साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है कि मेरे लिए अपने मुल्क की नुमाइंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यूनुस खान क्रिकेट के बारे में अपना वसी तजुर्बा और इल्म कौमी टीम तक पहुंचाने के लिए बेचैन है। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने एक्सपीरियंस अपने यंगस्टर में अपने मुल्क को पे बैक की शक्ल में कैसे मैं दूंगा, और ये मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि बहुत बड़ी सीरीज पाकिस्तान खेलने जा रही है। दुआ ये करें कि हम अच्छी परफॉर्म कर सकें, और क्या ये अच्छा हो कि इंग्लैंड की सीरीज हम विन करके आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड रवानगी से कबल ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद न करने का फैसला किया है। खिलाड़ियों के लिए एक महफूज माहौल की फराहमी के लिए लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मसाइल की फराहमी में मुश्किलात के बायस क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी क्रिकेट टीम की जुलाई के अवाइल में इंग्लैंड के लिए मुजवज़ा तारीख को तब्दील करके जल्द इंग्लैंड रवानगी पर ECB से मुसलसल राब्ते में है ताकि खिलाड़ियों को इंग्लैंड में इजाफी प्रैक्टिस सेशंस में ट्रेनिंग का मौका मिल सके। इलावा अज़ीम खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की कोविड-19 टेस्टिंग, इंग्लैंड रवानगी से कबल लाहौर में इकट्ठा होना और टीम की इंग्लैंड में ट्रेनिंग और मैच शेड्यूल के हवाले से जल्द आगाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, खेलों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को अयाज असलम और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं खुदा का वो बंदा हूँ जिसके रग रग में आजादी की तड़प मौजूद है। सलाम है कश्मीरी कौम पर जो भारत से आज़ादी के लिए तारीख की अजीम कुर्बानियां देते हुए जबर की आग से कुंदन बन गए। वो सबर के पहाड़ हैं। चंद दिन पहले कायदे हुर्रियत मोहम्मद अशरफ सहराई के आला तालीम याफ्ता बेटे शहीद जुनेद सहराई, जिन्हें भारतीय मुजालिम ने बंदूक उठाने पर मजबूर किया, भारतीय फौज से मुकाबले में शहीद हुए। तो भारतीयों के एजेंटों ने चाहा कि वो उसकी लाश मांगे, तो सब्र इस्तेकामत के उस पहाड़ ने शहीद बुरहान वानी और रियाज नाइकू के वालिदैन की तरह अपने जवान बेटे की शहादत पर कौम के बेटों को तरजीह देते हुए कहा, चटानक पे सारे सख्ती बर्दाश्त और खड़ा रोड बराबर मुल्क मेरी गुजारिश यह है, आप सारे खुद ज्यादा हक हूँ तह पे तो मे पान अलग कर यम लूक अत जुदयादस मन पन्नी जिंदगी तामत कुर्बान करनस पे गई आमाद तो पत कर जिंदगी कुर्बान तमिन शहीदन हक शहादतन एहतराम करुन गो जुदजहद जारी खुदायस गो आजादी बराई इस्लाम। अजीम कश्मीरी रहनुमा ने अपने बेटे शहीद जुनेद सहराई की जिद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। जो दूसरे बेटे हमारे इस वक्त मैदानी कारजार हैं, मेरे बेटे से बहुत पहले से उनका खून भी हमारे लिए कीमती है और अपने बेटों का खून भी, हर इंसान का खून कीमती है, हत्ता कि गैर
अगर उनके लिए हमने किसी से अपील करने के लिए ही नहीं कहा है, आज अपने बेटे के लिए कि मैं क्यों करूंगा? क्या उसका खून, मेरे बेटे का खून दूसरे बेटों से ज्यादा कीमती है? मुझे अपील करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि एक शख्स अपना फर्ज मुसलमान होने की हैसियत से नमाज कोई अदा करता है तो अपना फर्ज अदा करता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। इसी तरह मेरा बेटा मुझसे हाथ मिलाए बगैर, मुसाफा किए बगैर, मुझसे ये कहे बगैर कि मैं इस वक्त जा रहा हूँ, मैं इधर बैठा था, वो उधर से चला गया था नमाज अदा करने के लिए, और नमाज के साथ ही उसने उधर से ही अपनी राह जो उसने चुन ली थी, पहले से ही उसने जो चुन ली थी मुझसे, यानी उस वक्त कोई उनका मुकालमा और कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कोई रक़्सत की कोई महफिल भी और मुनक़िद नहीं हुई, कोई मुसाफा नहीं हुआ। हुर्रियत के रहनुमा भारत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखते हुए दिल्ली हुकूमत से सियासी बातचीत से इनकार नहीं करते, लेकिन उनका कहना है मुज़ाकरात का बामकसद होने चाहिए, महज वक्त जाया करना नहीं, जो भारत का वतीरा है। बातचीत आज तक कई सैकड़ों बार होती रही है, उसके अलावा भी कितनी बार मुलाकातें हुई, कितनी बार बातचीत हुई, लेकिन मसला ये है कि उस टेबल पर बैठकर सरबराहान मुल्क हूँ, या चाहे वज़राए खारजा हूँ, या सफरा हूँ, या कोई बातचीत करने वाले नामजद अफराद हूँ, जब तक न मसले को, मसले कश्मीर को, इसकी बुनियादी हैसियत को तस्लीम करते हुए कि ये मुतनाज़ा मसला है, इस मसले को बैठकर हल करने की जरूरत है, मुतनाज़ा मानना है, उस वक्त तक इन बातचीतों से फायदा क्या है? कश्मीर की तहरीक आज़ादी दुनिया की तवील तरीन जिद्दोजहद है। कश्मीरी कौम लाजवाल कुर्बानियों और बेमिसाल जज्बा आज़ादी से सरशार है। अपने जवान बेटों की कुर्बानियों से उन्हें सब्र इस्तिकामत का नाकाबिले तस्खीर पहाड़ बना दिया है। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं, जबकि भारत का मुकद्दर इस पहाड़ से टकराकर बदतरीन शिकस्त और टुकड़े टुकड़े होना है, इंशाअल्लाह।